सो बच्चे सोल्यूशन एंड कंसंट्रेशन इसका हमने पोर्शन जो है लास्ट कंप्लीट किया था. सो टुडे विल बी मूविंग अहेड, विल बी टॉकिंग अबाउट हेट्रोजिनस मिक्सचर्स. हमने बच्चे जो लास्ट टॉपिक किया था होमोजेनस मिक्सचर्स में सोल्यूशन किया था. सो विल बी टुडे डीलिंग विद हेट्रोजिनस मिक्सचर्स in which we'll be talking about suspensions and colloids. अब बच्चे what is a suspension and what is a colloid? ठीक है. Before moving on to that, we'll quickly write what do we understand by the term heterogeneous mixture. Okay, solution हमने पढ़ा था. Solution is example of homogeneous mixture. Solution is homogeneous. All right, homogeneous mixture. What do we mean by this? इसका क्या मतलब होता है? Particles are in one phase. Particles are in one phase. Okay? इसके अंदर हमने डिस्कस किया था we have a solute and a solvent. There can be more than two components also. But इसके अंदर जब particles mix होते हैं they make up a homogeneous mixture in which they appear in one phase. You cannot see particles separately. For example, sugar in water. Sugar in water. It is example of a solution. It is a homogeneous mixture. Once sugar dissolves in water, जब एक बार sugar water में dissolve हो जाता है उसके बाद आपको sugar अलग दिखाई नहीं देगा. So it is a homogeneous solution. What we are going to do today is we are going to talk about heterogeneous mixtures. All right. So बच्चे what are heterogeneous mixtures? Heterogeneous mixtures क्या होते हैं? They are mixtures in which particles are not in one phase. Okay, particles present in the mixture. Particles present in the mixture are visible separately or they are not in one phase or they are not in one phase. Okay, बच्चे what do we understand by not in one phase? मतलब आपको particles अलग अलग दिखाई देंगे. जैसे मान लो if I mix sand in water, आपको sand और water अलग अलग दिखाई देगा. You mix oil and water will be separate. Okay, you mix let's say camphor with salt, अलग अलग दिखाई देंगे. ठीक है. So they are heterogeneous mixtures, they will not appear in one phase. अब बच्चे heterogeneous mixtures इनको हम दो categories में divide करेंगे. The first category that we'll be discussing is suspensions. अब बच्चे when you talk about suspension is a type of heterogeneous mixture in which the particle size is way greater than in solution. If you remember particle size जो हमने लिखा था solution के अंदर, that was approximately in the range of 1 nanometer. Okay, हमने बोला था solution जब भी बनाना है तो particle size जो है 1 nanometer से छोटा होना चाहिए. And 1 nanometer is equivalent to 10 raised to power minus 9 meter. इससे छोटा पार्टिकल होना चाहिए. What is a suspension? Suspension has a particle size which is way greater. Okay, तो यहां जो particle size है it should be okay. Suspension कब form होते हैं? They are formed when particle size is greater than 100 नैनोमीटर. अगर बच्चे पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा, ऑलराइट, तो आप क्या बनाओगे? यू विल गेट मिक्सचर्स विच आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन. यहाँ पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है. अगर इस 100 नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो दैट वुड बी
that will come out to be 10 raised to power -7 मीटर। अगर इससे बड़ा पार्टिकल साइज होगा तो आप जनरली क्या फॉर्म करोगे? यू विल गेट सस्पेंशंस। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल इफ आई मिक्स सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर इज अ सस्पेंशन, क्योंकि जो सैंड का पार्टिकल साइज है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा है, so it will form a suspension. All right, so these will be formed when particle size is greater than 100 nanometer. So this is one thing that we need to remember. All right, okay, I'll just go back to your NCERT book. ठीक है, सस्पेंशंस के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, ये हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, particles are not in one phase. Secondly, particle size is way greater than you see in a solution. Okay, particle का size बहुत बड़ा है, और यहाँ जो particle size है बड़ा है, this is the reason they are easily visible to the naked eye. बहुत easily आप उन्हें naked eye से देख पाओगे, particle size is greater. Okay, बचे in solution के अंदर हमने एक important point लिखा था, solutions do not show Tyndall effect. Solutions do not show Tyndall effect. Okay, this was the point that we have put in solutions. Solutions do not show Tyndall effect. अब अच्छा, what do we understand by the term Tyndall effect? इसका आपको मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया था। When we move into a dark room, जब हम डार्क रूम में जाते हैं, and from the side of a window light is entering, what you will see? You will see the path of light visible in the dust particles. Dust particles पे जब light strike करती है, उसी वजह से उसका path क्या हो जाता है? Visible हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं Tyndall effect. Okay, solutions के अंदर Tyndall effect नहीं दिखता। Reason, उनके अंदर particle size बहुत छोटा है, so they do not show Tyndall effect. Solutions does not show Tyndall effect. अब अच्छा, what about suspensions? What about suspensions? Suspensions will show the path of light, making it visible. So that means suspension will show Tyndall effect. It will show Tyndall effect. Okay, it will show Tyndall effect. क्योंकि सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बड़ा है, तो इट विल शो Tyndall effect. पाथ ऑफ लाइट विल बिकम विजिबल। पर बच्चे, सस्पेंशंस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑलराइट, सस्पेंशंस पोज अ डिफिकल्टी अगर हम कहते हैं Tyndall effect. ओके, Tyndall effect, they will show Tyndall effect because particle size is large. Okay, they will show Tyndall effect till the time suspension does not break. Okay, अब इसका क्या मतलब है? सस्पेंशन डज नॉट ब्रेक। ओके, बच्चे, अगर हम सैंड को या किसी और पार्टिकल को पानी के अंदर मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से क्ले, आपने क्ले को वाटर के अंदर मिक्स किया, यू स्टर इट अप, आप क्या नोटिस करोगे? क्ले के पार्टिकल्स जो हैं पानी के अंदर फ्लोट करेंगे। पर बच्चे, अगर आप थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ दो साइड पे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ड्यू टू ग्रेविटी द क्ले पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, सेडिमेंटेशन। ओके, इन सेडिमेंटेशन व्हाट हैपेंस? द हेवियर पार्टिकल्स विल सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो बच्चे, सस्पेंशंस जो होते हैं ना, सस्पेंशन स्टेबल नहीं होते। हमने ये पॉइंट भी लिखा था, सॉल्यूशंस आर स्टेबल, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। पर बच्चे, सस्पेंशंस क्या होते हैं? सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। अब बच्चे, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पार्टिकल्स विल सेटल डाउन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। पार्टिकल्स सेटल डाउन अंडर influence of gravity. All right, particles settle down under the influence of gravity. और बच्चे, जब particles settle हो गए तो what we will say? Suspension has broken. Suspension खत्म हो गया क्योंकि particle नीचे settle हो गए।
और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, क्या सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा? नो। वंस द पार्टिकल सेटल डाउन इन द सस्पेंशन, तो क्या होगा, सस्पेंशन ब्रेक हो गया, और जब सस्पेंशन ब्रेक हो गया तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। हमें ये याद रखना है, जब तक सस्पेंशन में पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं तब तक टिंडल इफेक्ट है। जैसे ही आपने ग्रेविटी में उसे छोड़ दिया, मतलब साइड पे आपने छोड़ा सस्पेंशन, पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए, उसके बाद सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, फिर टिंडल इफेक्ट वो शो नहीं करेगा। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर। सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, particles will settle down under the influence of gravity, and when this happens tyndall effect will cease to be shown। tyndall effect आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, जब तक पार्टिकल फ्लोट कर रहे हैं तब तक ही आप tyndall effect देख पाओगे। ऑलराइट, another very important thing, can we use simple filtration processes to separate particles of suspension? solution में हमने क्या लिखा था? solution में हमने लिखा था filtration cannot be used to separate particles। बट बच्चे, कैन वी यूज फिल्ट्रेशन इन सस्पेंशंस? यस, कर सकते हैं। जैसे बच्चे, अगर क्ले है वाटर के अंदर, यूज फिल्टर पेपर, क्ले को आप सेपरेट कर पाओगे। सैंड इन वाटर, यू कैन यूज फिल्टर पेपर टू सेपरेट इट। ओके, सो फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड। this is another feature that you see in suspensions। filtration can be used, filtration can be used to separate suspended particles। okay, filtration can be used to separate suspended particles। जैसे अगर मेरे पास क्ले है वाटर में, सैंड है वाटर में, तो मैं फिल्ट्रेशन यूज करके क्या कर सकता हूं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकता हूं। ऑलराइट, दिस इज नॉट पॉसिबल इफ यू आर हैविंग अ सोल्यूशन। सोल्यूशन के पार्टिकल्स को हम सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ जी, अभी सुचिता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर जैसे सस्पेंशन में सर जो हमारा क्ले, सर वाटर में सर जो हमारा क्ले था सर वो फ्लोट कर रहा था, तो उसके बाद से वो सेटल डाउन हो गया ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके बाद सर कुछ टाइम के बाद तो सर फिर भी वो नीचे ही रहेगा, तो सर वो स्टेबल हो गया, तो सर उसके बाद टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है सस्पेंशन? बच्चे, अगर पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए तो सस्पेंशन तो खत्म ही हो गया ना, तो टिंडल इफेक्ट कैसे शो करेगा? वाटर के पार्टिकल्स तो इतने बड़े नहीं है कि वो टिंडल इफेक्ट शो कर सके। बच्चे, टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि पार्टिकल का साइज इस तरीके से है कि लाइट जब उस पर स्ट्राइक कर रही है तो पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल हो रहा है। अगर सस्पेंशन ब्रेक हो गया तो उसके बाद कैसे टिंडल इफेक्ट होगा? राइट, इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? यस सर। सर जो सैंड इन वाटर होता है सर वो सस्पेंशन का एक एग्जांपल होता है? हाँ जी, सैंड इन वाटर सस्पेंशन का एग्जांपल है। देखो, जो भी चीज आपको नेकेड आई से विजिबल हो रही है ना मिक्सचर में, दैट यू कैन इजीली कॉल अ सस्पेंशन। जैसे सैंड इन वाटर है, क्ले इन वाटर है, दैट वुड बी सस्पेंशन। क्लियर? यस सर, लेकिन सर जो सैंड इन वाटर वाटर होता है, जैसे सर प्लेन वाटर से थोड़ी देर के लिए सर वो फ्लोट करता है, लेकिन सर सैंड इन वाटर तो सर मतलब पहले से ही सर सेटल डाउन हो जाता है। नहीं, बच्चे देखो, आप सैंड को पानी में डालो एंड स्टर इट अप, फिर क्या होगा? इट विल मिक्स विद वाटर, इट विल मिक्स विद वाटर, फिर उसको छोड़ो, थोड़े टाइम के बाद फिर सैंड नीचे सेटल होगी। इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, ठीक है बच्चे। तो बच्चे, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम सस्पेंशन में देखते हैं। वंस सस्पेंशन ब्रेक्स, जब एक बार सस्पेंशन जो है ब्रेक हो गया, उसके बाद आपको टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। ओके, रितंजय इज आस्किंग व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन। बच्चे, सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। फिल्ट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, कोई एप्रोप्रिएट फिल्टर यूज करके पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन में आप फिल्टर पेपर यूज करोगे। सेपरेशन तो एक तरीके का क्या हो गया, इट इज लाइक अ वर्ड कि सेपरेशन है। सेपरेशन का क्या मतलब है, पार्टिकल्स को अलग करना है। सेपरेशन की एक टेक्निक है फिल्ट्रेशन, ठीक है? सेपरेशन की एक टेक्निक है फिल्ट्रेशन। आई होप दैट इज क्लियर। ऑलराइट, ठीक है, ओके, ऑलराइट।
चलो अब अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे। दिस इज आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है हेट्रोजेनस मिक्सचर्स का। अब अच्छा, जब हम कोलॉइड्स की बात करते हैं, कोलॉइड्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऑलराइट, कोलॉइड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों हम इनको इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है। दे अपीयर होमोजीनस। कोलॉइड्स, दे अपीयर होमोजीनस। ऑलराइट, देखने में होमोजीनस है, बट एक्चुअली आर हेट्रोजीनस। ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी यूनिक अबाउट कोलॉइड्स। देखने में वो आपको होमोजीनस लगते हैं, पर रियलिटी में वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनस है। तो वी शुड नॉट बी फूल्ड बाय देयर अपीयरेंस। उनके अपीयरेंस से हमें क्या होना है, बेवकूफ नहीं बनना है। वी शुड नॉट बी ट्रिक्ड इनटू सेइंग कि वो होमोजीनस है। दे अपीयर होमोजीनस, देखने में होमोजीनस है। ऑलराइट, पर एक्चुअली में वो क्या होते हैं, एक्चुअली में वो है हेट्रोजीनस। ऑलराइट, ये चीज हमें याद रखनी है। अब बच्चे ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? ओके, दे अपीयर होमोजीनस, बट एक्चुअली में ये क्या है, हेट्रोजीनस है। अब इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चे, दैट इज देयर यूनिक पार्टिकल साइज। ओके, सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन में हमारा जो पार्टिकल साइज है, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ओके, व्हाट अबाउट सस्पेंशन? सस्पेंशन में हमने बोला पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन, पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ऑलराइट, कोलॉइड्स में क्या हो रहा है बच्चे, कोलॉइड्स में जो आपका पार्टिकल साइज है इन दोनों के बीच में, दैट इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक अबाउट कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में क्या हो रहा है, पार्टिकल साइज इज बिटवीन, पार्टिकल साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, इसके बीच में पार्टिकल साइज है। और बच्चे ड्यू टू दिस यूनिक पार्टिकल साइज इट अपीयर्स होमोजीनस, देखने में होमोजीनस है, पर एक्चुअली ये होमोजीनस नहीं होता, इट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, तो ये हमें याद रखना है। ऑलराइट, इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है लाइक मिल्क। मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोलॉइड, मिल्क इन वाटर, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ठीक है, हमें मिल्क देखने में होमोजीनस लगता है, पर एक्चुअली होमोजीनस वो नहीं है, इट इज हेट्रोजीनस, अपीयरेंस होमोजीनस है। ऑलराइट, अब अच्छा, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इट हैज सम इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओके, नंबर 1, इट इज स्टेबल। कोलॉइड इज स्टेबल। जब आप बच्चे कोलॉइड्स की बात करते हो, कोलॉइड्स आर स्टेबल, इसका क्या मतलब है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। पार्टिकल्स डू नॉट settle down under, particles do not settle down under the influence of gravity. all right, अगर आप बच्चे कोलॉइड को छोड़ोगे कभी भी, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो उसके अंदर डिस्पर्स्ड हैं, ओके, अभी हम आगे अभी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर सेटल नहीं होते। तो कोलॉइड्स आर स्टेबल जस्ट लाइक सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की तरह ही कोलॉइड्स भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ओके, सेकेंडली, will they show Tyndall effect? Yes, they also show Tyndall effect. Colloids will also show Tyndall effect. Okay, सॉल्यूशंस के अंदर टिंडल इफेक्ट नहीं है, सस्पेंशंस के अंदर टिंडल इफेक्ट जब तक है जब तक पार्टिकल्स क्या है, फ्लोट कर रहे हैं। कोलॉइड्स के अंदर टिंडल इफेक्ट है। ओके, सो दे विल आल्सो शो टिंडल इफेक्ट। नंबर 3, can we separate their particles by filtration, simple filtration? No. Okay, particles cannot be separated by simple filtration. Particles cannot be separated by simple filtration.
बच्चे इसके अंदर हमें और अप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। एक टेक्निक बच्चे हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन इज अ टेक्निक वेयर इन वी सेपरेट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ कोलॉइड अंडर द फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उससे हम यूज करके क्या करते हैं, पार्टिकल्स को कोलॉइड्स में से अलग करते हैं। ठीक है, तो सिंपल फिल्ट्रेशन से हम कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। इनके अंदर भी टिंडल इफेक्ट है, और ये जो है दे आर क्वाइट स्टेबल, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ऑलराइट, ओके, आई विल जस्ट गो बैक टू योर एनसीईआरटी बुक। ऑलराइट, ये देखिए यहां आपको टिंडल इफेक्ट दिखाया हुआ है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट एक्चुअली? बट इफ यू क्लियरली सी solution A, it is made up of copper sulfate in water. हमारा जो A वाला मिक्सचर है, homogeneous mixture solution है, it is made up of copper sulfate mixed in water. Second is water and milk. अब अच्छा water and milk क्या है? It is example of a colloid. Water and milk is an example of colloid. Copper sulfate जो water में mixed है, that is solution. As you can clearly see, सोल्यूशन के अंदर पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल नहीं हो रहा। ऑलराइट, बट एज सुन एज इट पासेस इनटू वाटर एंड मिल्क, इसका जो पाथ है वो विजिबल हो गया। ऑलराइट, दिस इफेक्ट इज टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट इज सीन ओनली इन कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस, यू विल नॉट सी इट इन सॉल्यूशंस। ओके, ये चीज हमें याद रखनी है। ऑलराइट, अब अच्छा व्हाट आर दी डिफरेंट कंपोनेंट्स? जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ऑलराइट, व्हेन वी टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइड, प्रज्ञा यू आर एब्सोल्युटली राइट, ब्लड को भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन ही बोलेंगे। ब्लड विल बी रिगार्डेड एज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब अच्छा व्हाट आर दी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइड? Components of colloid. बच्चे, we will divide components of colloid into two parts. Okay, first is dispersed phase. First is dispersed phase. Okay, जैसे बच्चे if you remember solution में हमने दो components लिखे थे। सोल्यूशन के अंदर हमने दो कंपोनेंट्स लिखे थे, फर्स्ट वाज सोल्यूट, सेकंड वाज सॉल्वेंट। सोल्यूट हमने बोला था इट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, सॉल्वेंट इट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। ऑलराइट, सिमिलरली बच्चे कोलॉइड के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, इट इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। लेसर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा कोलॉइड में, आप उसको क्या बोलोगे? डिस्पर्स फेज। ओके, डिस्पर्जन मीडियम, व्हाट इज डिस्पर्जन मीडियम? विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, जिसके अंदर पार्टिकल्स डिस्पर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन मीडियम। सो अगर आप बच्चे इसको सोल्यूशन के साथ कंपेयर करो, if you compare it with solutions, solute lesser quantity में था, solvent larger quantity में था। similarly colloid के अंदर होता है dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase is one which is present in lesser quantity, dispersion medium is one which is present in larger quantity. तो ये दो components होते हैं colloid के। और बच्चे colloid को हम क्या कहते हैं? colloid is sometimes also referred to as sol. कोलॉइड को कई बार हम सॉल भी बोलते हैं। ओके, व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज सॉल? जस्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन इज इन रियलिटी होमोजेनस। कोलॉइड्स दे अपीयर लाइक सॉल्यूशंस बट दे आर नॉट ट्रू सॉल्यूशंस। तो कई बार हम इनके लिए ये टर्म भी यूज कर लेते हैं विच इज सॉल। ओके, अब अच्छे based on the dispersed phase and dispersion medium, you have different types of colloids. Based on dispersed phase and dispersion medium, आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के colloids हैं। Okay, I'll just go back to your NCERT book table 2.1. बच्चे, this table is important. Why I am saying this table is important? Because it is a very
इंपॉर्टेंट, यू कैन से फ्रॉम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको एग्जाम्स में 1 मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन ओलंपियाड्स के अंदर आपको ये पूछा जा सकता है। व्हाट वी हैव टू डू, you have to differentiate between different types of colloids based on dispersed phase and dispersing medium. all right, इस बेसिस पे हमें क्या करना है, इन पार्टिकल्स को अलग अलग करना है। ओके, सो बच्चे here dispersed phase and dispersing medium and type of colloid is given. all right, तो बच्चे अगर मैं पहला देखूं, if I look at the first example, what is the dispersed phase? Dispersed phase is liquid. Dispersed phase क्या है? Liquid. And what is the dispersing medium? Dispersing medium is gas. इसका ये मतलब है बच्चे कि लिक्विड को हमने गैस में डिस्पर्स किया है। गैस इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, लिक्विड इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। तो बच्चे यहाँ ये किस टाइप का कोलॉइड बनेगा? इट वुड बी एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल। It would be example of aerosol. Okay, aerosol. अब बच्चे इसका कॉमन एग्जांपल देखो, fog, clouds, mist. अब बच्चे let's try to relate, ये हम कैसे देख पा रहे हैं? बच्चे अगर आप clouds को देखो, what are clouds? Clouds कैसे फॉर्म होते हैं? Water vapor. Okay, water vapor जो है वो कंडेंस होता है ड्रॉपलेट्स में, ड्रॉपलेट्स। ओके, वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू ड्रॉपलेट्स। ऑलराइट, और ये ड्रॉपलेट्स किधर फ्लोट करते हैं? दे आर फ्लोटिंग इन एयर, दे आर फ्लोटिंग इन एयर। दिस इज हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। ओके, सो लिक्विड वाटर इज डिस्पर्स्ड इन एयर। तो बच्चे ये किस टाइप का कोलॉइड बन गया? एरोसॉल। बच्चे दिस इज हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स, ठीक है, जब वाटर इवेपोरेट करता है तो वो कंडेंस हो जाता है एयर में जाके, जब वो कंडेंस होता है तो वो उसमें डिस्पर्स हो जाता है और वो क्लाउड्स बनते हैं। बच्चे फॉग एंड मिस्ट आर सिमिलर। फॉग और मिस्ट जो है वो सिमिलर होती है। मिस्ट इज समथिंग दैट यू विल सी इन हिली एरियाज, ये हिली एरियाज में दिखेगी आपको। ओके, फॉग एंड मिस्ट आर सिमिलर, पर फॉग जनरली हम प्लेन्स में देखते हैं और जो मिस्ट है हम कहाँ देखते हैं? हिली एरियाज में, या ड्यूरिंग अ वेरी कोल्ड नाइट यू विल सी मिस्ट। ओके, आप कह सकते हो ये एक तरीके के सिनोनिम्स है। ओके, एक आर दैट इज क्लियर, यू कैन से दे आर काइंड ऑफ सिनोनिम्स, फॉग एंड मिस्ट। ओके, आपने देखा होगा जैसे हिली एरियाज में जैसे हम कहते हैं कि धुआं सा फ्लोट कर रहा होता है, दैट इज मिस्ट। ऑलराइट, फॉग इज जनरली सीन इन प्लेन्स, कोल्डर एरियाज। उसके बाद है बच्चे सॉलिड। सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, इसको भी हम एरोसॉल ही बोल रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्मोक। अब बच्चे कैन यू टेल मी व्हाट आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन स्मोक? हाउ आर वी कॉलिंग इट सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस? ओके, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस को हम कैसे देख पा रहे हैं? ओके, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी हरमन। Good evening, sir. गुड इवनिंग। In smoke, so the dispersing medium is gas and the dispersed phase is solid. So the dispersed phase is solid because smoke contains certain particles such as Okay. carbon particles, lead particles, and other heavy metal particles which are Okay. emitted while burning. ओके, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अब बच्चे मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, देन ओनली यू कैन लर्न द टाइप ऑफ कोलॉइड। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एरोसॉल्स, एरोसॉल हमारे को दो बोला हुआ है, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस। हरमन इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको स्मोक बोल दिया, आपको बोला गया स्मोक में मुझे बताओ कौन सा पार्टिकल डिस्पर्स्ड है और कौन सा डिस्पर्सिंग मीडियम है। तो बच्चे जब आप कभी भी फ्यूल को जलाते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोल को मैंने जलाया, तो कोल के जो पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स, हेवी मेटल पार्टिकल्स, दे विल राइज अप एंड दे विल मिक्स विद एयर, फिर स्मोक बनती है। सेम इज द केस विद ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अगर आप फ्यूल बर्न करते हो, पेट्रोल एंड डीजल, ओके, पेट्रोल एंड डीजल को अगर हम बर्न करते हैं, ऑलराइट, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
इट विल रिलीज कार्बन पार्टिकल्स, उसमें से लेड के पार्टिकल्स भी निकलेंगे एंड दे विल मिक्स विद एयर. सो स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस. ओके, देन gas in liquid, foam. Okay, gas in liquid, it is a type of colloid which is known as foam. तो इसका common example है बच्चे shaving cream. Shaving cream is example of gas dispersed in liquid. उसके बाद है बच्चे liquid in liquid, commonly known as emulsion. अब बच्चे when you talk about emulsions, emulsion का common example है milk and face cream. अब बच्चे how milk is known as emulsion, why milk is called emulsion, liquid in liquid, कैसे बच्चे मिल्क के अंदर बहुत सारे लिक्विड प्रोटीन्स, ओके, प्रोटीन्स एटसेट्रा, ये क्या होते हैं इसके अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं इन वाटर, वाटर लाइक बेस. ओके, तो इसके अंदर जब ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं तो व्हाट दे विल फॉर्म, दे विल फॉर्म इमल्शन. इसके अंदर फैटी एसिड्स भी हैं, फैटी एसिड्स, लिपिड्स, ग्लिसरॉल. ओके, तो ये सारे लिक्विड फॉर्म्स में हैं और ये किसके अंदर डिस्पर्स्ड हैं, दे आर डिस्पर्स्ड इन वाटर. वाटर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है जिसके अंदर ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो डिस्पर्स्ड हैं. सो मिल्क इज फॉर्मिंग एन इमल्शन. सेम इज द केस विद फेस क्रीम. ओके, फेस क्रीम के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस एडेड हैं जो लिक्विड फेज में है और इसके अंदर जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो भी लिक्विड है, तो उससे ये फेस क्रीम बनेगी. ऑलराइट, देन सॉलिड इन लिक्विड, it will form sol. अब अच्छा when you talk about solid and liquid, इसका जो common example दिया हुआ है that is milk of magnesia. Okay, अब अच्छा milk of magnesia हम commonly use भी करते हैं घर पे. I think you might have seen Gelusil. Gelusil, this is used to treat acidity. It is used to treat acidity. Gelusil. Okay, common ये घर पे होता है. तो बच्चे इसके अंदर अगर हम देखें इसमें क्या है, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड सॉल. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एग्जांपल दिया है. व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. ओके, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर. ऑलराइट, तो दैट विल फॉर्म व्हाट, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ कोलॉइड जिसको हम क्या कह रहे हैं, सॉल. देन मड. बच्चे मड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सॉल. इसके अंदर सॉलिड के मड कैसे बनता है, हाउ आर वी एबल टू सी फॉर्मेशन ऑफ मड. clay is dispersed in water, it will form mud. Okay, clay is dispersed in water, it will form mud. उसके बाद है बच्चे गैस इन सॉलिड. ऑलराइट, अब बच्चे गैस इन सॉलिड इसको भी हम फोम कह रहे हैं. ऑलराइट, इसका कॉमन एग्जांपल दिया है फोम, रबर, स्पंज एंड प्यूमिस. बच्चे प्यूमिस जो है इट इज अ टाइप, आई थिंक प्यूमिस स्टोन जो है इसको हम स्क्रबिंग के लिए यूज करते हैं, स्किन की स्क्रबिंग के लिए. ठीक है, जैसे अगर हम कभी क्या कहते हैं, इट इज यूज्ड टू स्क्रैप ऑफ डेड स्किन फ्रॉम द सोल ऑफ योर फीट. प्यूमिस स्टोन, it is a very common thing that we see at homes also. pumice, हिंदी में मैं I don't know हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, इससे हम अपनी स्किन को स्क्रब करते हैं. ऑलराइट, उसके बाद है लिक्विड इन सॉलिड. अब अच्छा लिक्विड इन सॉलिड इट विल बी टर्म्ड एज जेल. लिक्विड इन सॉलिड इट विल बी टर्म्ड एज जेल. तो बच्चे इसका कॉमन एग्जांपल है जेली, चीज, बटर. ओके, फिर सॉलिड इन सॉलिड इट इज टर्म्ड एज सॉलिड सॉल. तो बच्चे इसका कॉमन एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन्स. बच्चे इफ यू एवर सी कलर्ड जेमस्टोन्स तो उसके अंदर आप क्या देखोगे, उसके अंदर आपको कलर जो दिख रहा है वो उसके अंदर सॉलिड केमिकल पार्टिकल्स हैं जो डिस्पर्स्ड हैं, उसकी वजह से कलर आ रहा है. मिल्की ग्लास, बच्चे दिस इज कॉमनली यूज्ड इन होम्स where we want कि कोई आर पार ना देख पाए. फॉर एग्जाम्पल वी यूज देम इन आवर बाथरूम्स, विंडोज पे इसको लगाते हैं जिससे इसके आर पार नहीं देखा जाए, उसको कहते हैं मिल्की ग्लास. ये एक तरीके से क्या होता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है तो इसके आर पार हम नहीं देख पाते. ठीक है, सो दीज आर दी कॉमन टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स
अकॉर्डिंग टू डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने नोटिस की होगी, इफ यू केयरफुली नोटिस, ऑलराइट, यहां गैस इन गैस नहीं है, गैस इन गैस नहीं है, लिक्विड इन गैस है, सॉलिड इन गैस है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, पर बच्चे गैस इन गैस का कोई कोलॉइड नहीं। ओके, अब गैस इन गैस का कोई कोलॉइड क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे वो एक दूसरे में डिस्पर्स रह ही नहीं पाएंगे, दे आर फ्री टू मूव, तो उनको एक दूसरे में डिस्पर्स कर पाना बहुत मुश्किल है, तो गैस इन गैस का कोई कोलॉइड नहीं है। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, ऑलराइट, ओके बच्चे, these are notes that I'll be sharing with you today at the end of the class। तो बच्चे इसके अंदर भी जो टेबल दिया है वो बिल्कुल सिमिलर ही है, so most of the examples that we have done हमने वो ऑलरेडी अब डिस्कस कर लिए। ऑलराइट, तो बच्चे these are the different types of colloids, और बच्चे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू लर्न इट थ्रू, इट विल टेक सम टाइम, हो सकता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन भी हो, पर बच्चे you will be able to learn it in okay, Pragya is saying gas in gas can be a solution, right? It can be a solution, ठीक है ना, but colloid नहीं बनने वाला। Can we say gas in gas as a solution? Yes, Pragya, you can call them a solution। अगर आपके पास एक confined space है, अगर आपके पास एक confined space है, उसके अंदर हम जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करें, फिल कर दें, तो दे विल मिक्स विद ईच अदर। ऑलराइट, आर्यन, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, कोलॉइड में क्या है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, और उसमें हेट्रोजिनस कैरेक्टर भी एक चीज हमें याद रखनी है। ऑलराइट, तो आई थिंक दैट वुड बी अ रीजन यू विल नॉट say that gas in gas can form a colloid। yes हरमनदीप कौर, that is absolutely right, मिक्सचर तो है, पर किस टाइप का मिक्सचर बनेगा, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच प्रज्ञा इज आस्किंग, कि अगर हम गैस इन गैस मिक्स कर दें तो कैन वी कॉल इट अ सोल्यूशन? एक कंफाइंड स्पेस में है तो यस, आई थिंक यू कैन कॉल, मिक्सचर तो ऑब्वियसली है, यू कैन कॉल इट अ सोल्यूशन, पर जब वो हम कंफाइंड स्पेस हटाएंगे तो दे विल एस्केप फ्रॉम ईच अदर। कोलॉइड में क्या हो रहा है, हमारे हेट्रोजिनस नेचर का भी ध्यान रखना है हमें, and it should be stable also, so that is something we cannot see on mixing gas with gas, so that would be a problem। ठीक है, I hope that is clear। तो इसलिए हम गैस इन गैस का कोई कोलॉइड टाइप नहीं देख रहे। ऑलराइट, ओके, आई थिंक दैट इज इट, कोलॉइड्स की बच्चे यही प्रॉपर्टीज थी। ऑलराइट, चलो, सो विल नाउ क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट मिक्सचर्स, ऑलराइट, जब हम मिक्सचर्स की बात करते हैं, ओके, मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हिच आर फिजिकली मिक्स्ड विद ईच अदर। मिक्सचर्स में क्या है, मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स, they are made up of components which are physically mixed with each other, which are physically mixed with each other। ओके, एक दूसरे के साथ फिजिकली मिक्स्ड है, केमिकली मिक्स्ड नहीं है। अब अच्छा, there are many situations in which we have to separate different components of a mixture। For example, when we have to purify, purification processes, उधर हमें क्या करना पड़ता है, components को अलग करना पड़ता है, purification, ओके, और सिंपल सेपरेशन, लेट्स से आपको सेपरेट करना है क्रीम फ्रॉम मिल्क, ओके, तो बच्चे दिस इज समथिंग that can be done by simple physical processes। okay, बच्चे आपने लोअर क्लासेस में बहुत सारी फिजिकल टेक्निक्स पढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन, ओके, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपने क्लास 6th और 7th में भी पढ़ी है, पर बच्चे इन दिस चैप्टर we are going to deal with certain techniques
which will be useful for separation of components according to their properties. ये तो जनरल टेक्निक्स हैं, जैसे अगर आपके पास सैंड इन वाटर है, मैंने फिल्ट्रेशन कर ली. अगर आपके पास कोई एक ऐसा पार्टिकल है जिसका साइज बड़ा है मिक्सचर में, उसको सीव कर लिया. ये एक पार्टिकल है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसको मैग्नेट से अलग कर लिया. पर बच्चे अब हम कुछ और एडवांस टेक्निक्स पढ़ेंगे. ओके, और ये टेक्निक्स कहाँ यूजफुल हो रही है? फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स व्हेन वी वांट टू सेपरेट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर ओन यूज. अपने यूज के अकॉर्डिंग जब हम उन्हें सेपरेट करना चाहें. ओके, तो बच्चे विल बी क्लासिफाइंग देम इनटू डिफरेंट हेड्स. तो इसके अंदर बच्चे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जिनको हम पिक करेंगे एंड देन वी विल लर्न हाउ टू सेपरेट देम. अब बच्चे इसमें जो सबसे पहले हमें यूज करना है या सेपरेट करना है कंपोनेंट, हाउ कैन वी ऑब्टेन colored component or dye from blue or black ink. अब बच्चे when you talk about ink, ink is a mixture. जो हम ink यूज करते हैं, blue और black ink, blue और black ink, it is a mixture of different solid particles, is a mixture of solid dyes इन वाटर बेस. ओके, तो बच्चे अगर आपको ये बोला जाए कि इन सॉलिड डाइस को या पार्टिकल्स को अलग करिए, तो कैन वी सेपरेट देम? बच्चे हम इस चैप्टर में दो टेक्निक्स पढ़ेंगे. एक तो हम कलर के अकॉर्डिंग करेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी. पर बच्चे जो इनिशियल आज जो हम टेक्निक करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन सिंपल इवेपोरेशन. इस टेक्निक को हम कैसे करेंगे? हाउ विल वी कैरी आउट दिस टेक्निक? बच्चे व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ बीकर, एक बीकर लेंगे एंड वी विल फिल इट विद वाटर. इसके अंदर वाटर फिल करेंगे बीकर के अंदर. ओके, इसके ऊपर हम क्या करेंगे बच्चे? वी विल कीप अ वॉच ग्लास, एक वॉच ग्लास रखेंगे. बच्चे वॉच ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट, यू कैन से पीस ऑफ ग्लास, टम्बलर की तरह होता है जो लैब्स में अवेलेबल है. इस वॉच ग्लास के अंदर बच्चे आप इंक डालोगे. इंक विल बी केप्ट इन दिस वॉच ग्लास. ओके, अब बच्चे व्हाट यू विल डू, वी विल इनडायरेक्टली हीट द वाटर. हम यहां से हीट सप्लाई करेंगे. बच्चे दिस सेटअप इज नोन एज वाटर बाथ. आप इंक को कभी भी डायरेक्टली हीट नहीं करोगे. ओके, आप बोलोगे कि इवेपोरेशन ही करनी है, इंक को हीट कर लेते हैं. बच्चे बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, वी विल नेवर डायरेक्टली हीट इंक. अब इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. इफ यू डायरेक्टली हीट इंक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बच्चे द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन इंक, जो डाइज या पिगमेंट्स इंक के अंदर प्रेजेंट है, ड्यू टू हीट दे विल डीकम्पोज. वो हीट की वजह से क्या हो जाएंगे? डीकम्पोज हो जाएंगे. सो व्हाट वी विल डू, वी विल इनडायरेक्टली हीट देम ऑन अ वाटर बाथ. वाटर बाथ के ऊपर हम उन्हें क्या करेंगे? इनडायरेक्टली हीट करेंगे. और ये इनडायरेक्ट हीट हम क्यों दे रहे हैं? Why are we indirectly heating the ink? Okay, why indirect heat is used? Indirect heat क्यों यूज हो रही है? Indirect heating is done. What is the reason behind it? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों करेंगे? बिकॉज अगर आप डायरेक्टली हीट करोगे, ड्यू टू एक्सेसिव हीट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Due to excessive heat, particles will decompose. Okay, और हम नहीं चाहते कि पार्टिकल डीकम्पोज हो, तो हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट हीट देंगे ऑन अ वाटर बाथ. तो बच्चे व्हाट यू विल नोटिस, एज यू ग्रेजुअली हीट द वाटर बेस विच इज प्रेजेंट इन द इंक, इट विल इवेपोरेट. उसकी इवेपोरेशन हो जाएगी. एंड में आपको क्या मिलेंगे? यू विल गेट सॉलिड डाई पार्टिकल्स. आपको एंड में सॉलिड डाई पार्टिकल्स मिल जाएंगे. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, बहुत सिंपल टेक्निक है, जहां हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड पार्टिकल्स को जो इंक के अंदर प्रेजेंट है, उनको सिंपली हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट हीटिंग से क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं. ऑलराइट, ओके, हियर इट इज शोन. यहां देखिए ये सेटअप दिखाया है. वाटर इन बीकर, वॉच ग्लास इज केप्ट. इसको इनडायरेक्ट हीटिंग दे रहे हैं. ओके,
what will we observe after whole of the water is evaporated? What you will observe? You will get solid ink particles. Solid ink particles. Okay, so this is a simple technique which is based on evaporation. Okay, I hope this is clear. उसके बाद है बच्चे जो नेक्स्ट टेक्निक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है, ओके जस्ट अ मोमेंट बच्चे, यहां एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस और इज इट अ मिक्सचर? तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? इट इज अ मिक्सचर, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रेजिड्यू व्हिच इज लेफ्ट ऑन द वॉच ग्लास. इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड डाइस. जो आपको रेजिड्यू मिलेगा ना, वो भी मिक्सचर है सॉलिड डाइस का, उसमें भी अलग अलग डाइस हैं. ऑलराइट, ओके, इट इज अ मिक्सचर. ओके, चलो, दैट इज करेक्ट. तो बच्चे यहां हमने जो टेक्निक देखी ये हम कहां यूज करते हैं? सो वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बाय मेथड ऑफ इवेपोरेशन. अब बच्चे, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म वॉलेटाइल? वॉलेटाइल मींस समथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग. जैसे बच्चे अगर हम इंक को हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसमें जो वाटर बेस था वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है, इट इज वॉलेटाइल. पर बच्चे जो सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर हैं दे आर नॉन वॉलेटाइल, वो हीटिंग पे इवेपोरेट नहीं होंगे. तो अगर बच्चे हमारे पास कभी भी ऐसा एक कोई मिक्सचर है तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन इजिली सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे आपके पास है सॉल्ट सोल्यूशन, मैं आपसे पूछूं कि यहां सॉल्ट को हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो बच्चे यू कैन इजिली यूज इवेपोरेशन. आप इवेपोरेशन यूज कर सकते हो. क्यों? क्योंकि बच्चे जो इवेपोरेशन होगी तो क्या होगा? वाटर विल इवेपोरेट, वाटर विल इवेपोरेट, वाटर विल इवेपोरेट, लीविंग बिहाइंड सॉल्ट. ओके, ऑलराइट. तो बच्चे जब भी आपके पास ऐसा कोई मिक्सचर है आप इवेपोरेशन यूज कर सकते हो. ओके, पर बच्चे कैन वी यूज दिस टेक्निक टू सेपरेट शुगर सोल्यूशन? अगर आपके पास शुगर सोल्यूशन है उसमें से हम शुगर को अगर सेपरेट करना चाहें, कैन वी यूज दिस मेथड? व्हाट डू यू थिंक? सिंपल इवेपोरेशन से चल जाएगा? बच्चे जब आप इवेपोरेशन करोगे शुगर सोल्यूशन की तो आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि शुगर विल आल्सो बर्न ऑन एक्सेसिव हीटिंग. सो बच्चे फॉर शुगर सोल्यूशन हम एक और टेक्निक यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन, ओके, क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं? वी विल प्रिपेयर अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. हम क्या करते हैं? एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे. ओके, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे? वी विल अलाउ इट टू ग्रेजुअली कूल इट डाउन. उसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे? कूल डाउन होने देंगे. हाँ जी रितिन जी, एनी डाउट? मुझे वो शुगर सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन ही बताना था. ओके, तो बच्चे क्रिस्टलाइजेशन हम करेंगे. इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे? शुगर सोल्यूशन का सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे and then we will allow it to cool down. We will allow it to cool down. तो बच्चे हमने क्या सीखा था सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में? Once you get a super saturated solution, जब आप एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हो और उसके बाद आप उसको कूल डाउन करते हो, उसको ठंडा करते हो, तो व्हाट हैपेंस? जो एक्स्ट्रा सोल्यूट होता है वो क्या होता है? इट मूव्स आउट ऑफ द सोल्यूशन. तो बच्चे इन दिस प्रोसेस यू कैन गेट द शुगर व्हिच इज डिसॉल्व्ड in the solution in the form of crystals. All right, तो ये टेक्निक हम कहां यूज करेंगे? अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपोनेंट है जो हीटिंग पे क्या हो सकता है? खराब हो सकता है. जैसे शुगर है, इफ यू हीट शुगर बच्चे इट गेट्स चार्ड अप, so you can use the process of crystallization. बच्चे this can be also used for purifying salts. This technique can be also used for purifying salts. कई बार क्या होता है बच्चे, हमारे पास बहुत सारे salts के मिक्सचर होते हैं which have different solubility in water at different temperatures.
तो हम क्या करते हैं, उन सॉल्ट्स को वाटर में मिक्स करके सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे एंड देन वी विल अलाउ इट टू कूल डाउन अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी, दे आर सेपरेटेड। अगर कोई इंप्योरिटी भी उसके अंदर है तो बच्चे हम उसको फिल्टर करके सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके, व्हाट विल बी शेप ऑफ शुगर? बच्चे शुगर विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे शुगर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है बच्चे शुगर पार्टिकल्स का, ठीक है। आपने शायद बच्चे एक हिंदी में टर्म सुना होगा मिश्री। ओके, मिश्री भी हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से बनाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन रखते हैं, फिर उसको कूल डाउन होने देते हैं, तो उससे मिश्री बनती है। यू गेट बिगर पार्टिकल्स ऑफ शुगर। ओके, आई होप आप सबको मिश्री पता होगी, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, घर पे हम खाते हैं। ऑलराइट, हाँ जी रितंजय। सर मुझे पूछना था कि सर आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में जब वो ठंडा हो जाएगा और क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा तो सर उसका शेप सर उसे ही क्यूबॉइडल फॉर्म में ही होगा? देखो या बच्चे, कोई भी पेबल्स में शेप में हो जाएगा? देखो शुगर का जो हम शेप कहते हैं ना, वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन शेप होता है। ओके, अब बच्चे क्रिस्टलाइन शेप भी अलग अलग तरीके से होते हैं। ऐसे अगर आप बोलोगे क्यूबॉइडल शेप होता है तो ऐसा नहीं होता क्रिस्टल का शेप, ठीक है। क्रिस्टल शेप का हम देखो सॉलिड पार्टिकल्स को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन शेप, एक होता है अमॉर्फस। जैसे बच्चे चौक लो, चौक को आप पाउडर कर सकते हो ना, और उसके अगर हम पार्टिकल्स को देखेंगे तो उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, पर शुगर के पार्टिकल्स का एक डेफिनेट शेप होता है, उस शेप को हम क्रिस्टलाइन शेप कहते हैं। पर अगर हम ऐसे बोले कि क्यूबॉइडल शेप होता है, दैट वुड बी रॉन्ग। ओके, इज दैट क्लियर रितंजय? यस सर। ओके, यस। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन का मतलब है कि उसका एक डेफिनेट शेप होगा, दैट इज समथिंग दैट यू विल नॉट सी इन चॉक पाउडर, दैट इज अमॉर्फस। ऑलराइट, चलो let's move on to the next technique. This is known as centrifugation. Okay, अब अच्छा, when we go to the market, जब हम मार्केट में जाते हैं मिल्क लेने के लिए, तो आपने देखा होगा उधर मिलता है एक फुल फैट मिल्क, एक मिलता है टोन्ड मिल्क। ओके, टोन्ड मिल्क, अनदर इज डबल टोन्ड मिल्क। अब अच्छा, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय टोन्ड मिल्क एंड डबल टोन्ड मिल्क? जिसमें से हमने क्रीम या फैट रिमूव किया होता है, क्रीम इज रिमूव्ड। अब अच्छा, क्वेश्चन इज हाउ डू वी रिमूव क्रीम और फैट फ्रॉम द मिल्क? कैसे रिमूव करेंगे बच्चा? दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफिकेशन। दैट इज बाय प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन के प्रोसेस से करते हैं बच्चा। सेंट्रीफिकेशन में हम क्या करते हैं, मिल्क इज अ कोलॉइड, इट इज अ कोलॉइड। ऑलराइट, तो बच्चे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे बिकॉज कोलॉइड्स आर स्टेबल। So what we do, we employ the technique of centrifugation. In centrifugation, what we do, we rotate milk at very high speed. तो जब आप बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करोगे सेंट्रीफिकेशन टेक्निक की वजह से, क्या होगा, जो आपका फैट है, फैट इज लाइटर, इट विल फ्लोट ऑन टॉप। ऑलराइट, और जो नीचे जो लिक्विड पोर्शन है मिल्क का, इट इज हेवियर, तो वो नीचे रह जाएगा। ओके, सेंट्रीफिकेशन हम वॉशिंग मशीन्स के अंदर भी देखते हैं। आपने घर पे देखा होगा बच्चे, वॉशिंग मशीन के अंदर स्पिनर होता है। व्हाट वी डू, वंस वी वॉश आवर क्लोथ्स, उसमें भी सेंट्रीफिकेशन है, हमारे कपड़े गोल गोल घूम रहे हैं, पर जब वो एक बार धुल जाते हैं, हम उन्हें सुखाना चाहते हैं, हम उन्हें स्पिनर में डालते हैं। तो इन स्पिनर व्हाट हैपेंस, दे आर रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड। एंड बच्चे उस टेक्निक को भी हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रीफिकेशन ही है। ड्यू टू रोटेशन फोर्स जो लग रही है सेंट्रीफिकेशन की, उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी है वो निकल जाता है कपड़ों से एंड योर क्लोथ्स आर ड्राइड। ओके, सेंट्रीफिकेशन की टेक्निक हम और भी बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं बच्चे। इट इज यूज्ड इन मेडिकल लेबोरेटरीज। व्हेन वी गो फॉर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट,
तो वहां सेंट्रिफिकेशन की टेक्निक यूज होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना ब्लड या यूरिन जो होता है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में रोटेट करते हैं बहुत हाई स्पीड पे। तो बच्चे जो ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और ब्लड का जो फ्लूइड पोर्शन है प्लाज्मा वो सेपरेट हो जाता है, फिर हम उस पे आगे टेस्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड कॉमनली इन आवर डेली लाइफ्स। ओके, ऑलराइट, देखो ये चीज यहाँ आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी पूछी गई है, हाउ डू वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वैरायटीज ऑफ मिल्क। वजह दैट इज बाय प्रोसेस ऑफ सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन में हम क्या करते हैं, वी यूज अ सेंट्रिफिकिंग मशीन। ओके, तो इट इज समथिंग लाइक अ मिल्क चर्नर। जैसे बच्चे हमारी मिक्सी के अंदर जब हम मिल्क को चर्न करते हैं लाइक अ ब्लेंडर, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो फैट है वो ऊपर आ जाता है। ओके, आई डोंट नो वेदर यू नो ऑफ दिस। बच्चे विलेजेस के अंदर आपने देखा होगा जो विमेन है वो एक पॉट के ऊपर बैठ के वो रस्सी से मिल्क को घुमाती हैं, देखा है आपने कभी, मक्खन बनाने के लिए, मक्खन को सेपरेट करने के लिए। हो सकता है आपने अपने मदर को भी देखा हो। ओके, वो क्रीम में से क्या करती है, मक्खन को सेपरेट करने के लिए मिल्क को क्या करते हैं आपकी मदर, ब्लेंडर से करते होंगे या अपने हाथ से क्या करते हैं, चर्न करते हैं, तो उससे जो मक्खन है वो अलग हो जाता है। तो बच्चे दैट टेक्निक इज सेंट्रिफिकेशन। अगर आप मशीन से करोगे सेंट्रिफिकेशन टेक्निक वही है, सेम। तो बच्चे when we churn the milk, what happens, what we will observe, बच्चे fat will separate from milk और ये float होगा ऊपर on top and then it is removed, all right। अब बच्चे हमें ये टेक्निक क्यों यूज करनी पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ सिंपल फिल्ट्रेशन यूज नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन विल नॉट वर्क हियर बिकॉज मिल्क इज अ कोलॉइड एंड इट इज स्टेबल। तो ना ग्रेविटी से फैट नीचे सेटल होगा, ना आप फिल्ट्रेशन से फैट अलग कर सकते हो, इसलिए हमें ये सेंट्रिफिकेशन की टेक्निक यूज करनी है। ऑलराइट, देखो और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है। इट इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, इसको ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। ओके, it is also used in washing machines to squeeze out water from wet clothes. Okay, तो बच्चे ये कुछ applications हैं centrifugation की। All right, these are some of the applications of centrifugation. What we have to remember, the denser particles they will settle to the bottom and lighter particles they will stay at the top. This is the principle of centrifugation and it finds common usage in our daily life. ठीक है बच्चे, is this clear everybody? Okay, all right. Okay, so बच्चे what we'll do is we'll stop here today. Okay, we'll stop here today and we will continue with the separation processes in our next class. तो आज हम centrifugation तक ही करेंगे. We'll stop here today. We'll be continuing this in our next class.